Hello, student. In the previous class, we are talking about the bottom-up parsing. Recently, last four to five classes, I have discussed more about the bottom-up parsing, and in this series of bottom-up parsing, I have discussed shift reduce parsing using a stack, handle pruning technique, creation of parse tree using shift reduce parsing, and we have discussed a lot all these type of methods. And after that, I have told you three type of advanced bottom up parsing like SLR parsing, CLR parsing, LAR parsing. In among these three parsing, I have taken 2 or 3 lectures on SLR parsing, and we discuss a lot about SLR parsing, and I have created a SLR parsing table. So I am here just giving you a just recap for that SLR parsing so that you can people easily parse the string. So I have discussed in SLR parsing. Firstly, I am telling you that what is SLR parsing. SLR parsing simple means simple LR parsing, where S simply stand for simple, L means left to right. As the compiler move from left to right, that's what is called left to right. And R here means right sentential form. As you people know that, and I have already told you that the necessary condition for bottom up parsing is the rightmost derivation, or the string should be right sentential form. So I have discussed a lot about SLR parsing and discussed various issues like firstly in SLR parsing we have a given a grammar. Firstly, for that grammar, we have to create G dash, that is the augmented grammar. In this, we just taken a new start terminal and taking that type of production, and that for after augmented grammar, we have given the concept of Bible prefixes, and then I have discussed the closure property. Then I have discussed the goto functions. Then I have discussed canonical set of items, and I have discussed also the how to create DFA, deterministic finite automata, then creation of parsing table. So all these topic I have discussed with you people up to the creation of the parsing table. Now right now I am going to discuss in this class how a string is parsed. So firstly I am giving the brief recap for that so that you can you people easily understand. Augmented grammar, you people know that for any given grammar G, we have to create G dash by taking a new start non terminal. बाइबल प्रीफिक्सेस आपको मालूम है, जैसे A to XYZ there is a dot position. So we have to see that how many elements are left behind the dot. So if the position of dot is like that, so the possibility is like that. So unless dot after dot there is no element, we have to create that type of thing by moving the position of dot by 1 point. So this is called Bible prefixes. We are using the concept of Bible prefixes in closure property. So for any production we have to start from a start non-terminal. So firstly we have start from S dash, that is the start new start non-terminal, but giving this type of things.
सो एंड अगर यहाँ पे क्या है कि अगर डॉट के बाद एस है एंड विच इज नॉन टर्मिनल, देन वी हैव टू टेक ऑल द प्रोडक्शन ऑफ एस। सो ये हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। एंड द क्लोजर प्रॉपर्टी इज द स्टार्ट न्यू सेट ऑफ आइटम। दिस इज द स्टार्ट set of item. Then for every item I have to find goto function. Goto is like that if there is an element after dot, so we have to find goto of that particular element. If there is a production like a to alpha dot, so we don't have to find goto item because there is no element after dot. So if there is any element after dot, we have to find goto for that particular item. So we have to find the goto of every element for every set of items. So we have discussed a lot and we have done a various question on that issue. So we have to find that type of set of items, and set of all these items is called canonical set of items. जिससे आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको ये बताया था। आफ्टर दैट हमने आपको बताया था कि इस तरह से आप एक डीएफए बना सकते हैं, और यहाँ तक हमने बताया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे पार्सिंग टेबल बनाते हैं। तो पार्सिंग टेबल बनाने के लिए वी शुड नो दैट वी हैव टू लुक बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेट ऑफ आइटम्स। इफ देर इज a production of like this alpha dot b beta, so if there is an element after dot, if it is terminal, then there is a shift process. If there is an element after dot and which is non-terminal, so we have to simply find the goto of, like that. इस तरह से आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था कि अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो हम लोग सिर्फ गोटू टेबल में गोटू के करस्पॉन्डिंग हम लोग सिर्फ स्टेट की एंट्री कर देते हैं। और अगर क्या है, अगर इफ देयर इज एन टर्मिनल आफ्टर dot, then we have to shift and we have to find the goto, and जो goto फाइंड करने के बाद नया स्टेट आता है, दैट इज कॉल्ड द न्यू स्टेट. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस आई, वेयर आई इज द स्टेट एंड एस इज द शिफ्ट प्रोसेस. तो और अगर क्या कहते हैं, हमारे पास प्रोडक्शन कुछ इस तरह का है, अल्फा डॉट, इट मीन्स दैट अल्फा डॉट टाइप का प्रोडक्शन है. इट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट बिहाइंड डॉट. सो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिड्यूस. सो हमें क्या करना होता है कि जितने भी ग्रामर होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ ग्रामर लिख रखे हैं तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं. एंड वी हैव टू लीव द स्टार्ट न्यू टर्मिनल ऑफ द आर्गुमेंटेड ग्रामर. वट एवर द ओरिजिनल प्रोडक्शन आर गिवन, वी हैव टू कंसिडर दिस. सो हम लोगों ने इतने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखा था और कई सारे एग्जाम्पल हमने करा भी रखे थे. और हमने क्या किया था कि एक ये वाला ग्रामर हमने लिया था दिस, ठीक है, और इसका हमने क्या कराया था, आपको एक टेबल बनवाया था. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ आइटम्स फाइंड करते हैं. और सेट ऑफ आइटम्स में अगर क्या होता है हमारा, अल्फा ए टू डॉट अल्फा टाइप का अगर कुछ है, डॉट के बाद अगर कोई एलिमेंट है और अगर वो एलिमेंट टर्मिनल है तो शिफ्ट करते हैं, और अगर नॉन टर्मिनल है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, गो टू में उसका गो टू फाइंड करके
ठीक है, उस नॉन टर्मिनल का गो टू फाइंड करके हम लोग उस स्टेट की एंट्री कर देते हैं और कुछ नहीं करते। और अगर टर्मिनल है तो हम लोग क्या करते हैं, उस के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग शिफ्ट करते हैं और उसका गो टू फाइंड करके हम लोग उसकी स्टेट की एंट्री करते हैं। ये हमने आपको बता रखा था। तो इस तरह से, और अगर हाँ एक चीज़, अगर ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो रिड्यूस किस टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग ही करेंगे, जो हमारा क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द फॉलो ऑफ ए। सो वट एवर द एलिमेंट्स ऑफ फॉलो ऑफ ए, वी हैव टू पुट रिड्यूस corresponding to that particular entry by subscript like the production number। so हमें क्या करना होगा, सारे प्रोडक्शन नंबर इस तरह से लिखने होंगे। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी थी। अब हम आते हैं कि स्ट्रिंग को पार्स कैसे करते हैं। तो हमारे पास हमने देखिए एक पहले एक टेबल बना रखा, ये हमने आपको व्हेन वी हैव टेकन द क्लास वी हैव क्रिएटेड दैट particular table in the class। so at that time parsing of the string was left behind। so हम आपको यहाँ पे बता देते हैं स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देयर आर 3 एंट्रीज। फर्स्ट वन इज, हमने आपको बताया था, एक स्टैक होता है, एक इनपुट होता है और एक्शन होता है। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने एक इस तरह से एक बनवाया था, जहाँ पे क्या होता है, एक स्टैक होता है, ठीक है, ये हमारा, और ये हमारा एक इनपुट बफर होता है जिसमें इनपुट फॉलोड बाय डॉलर रख देते हैं, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है, हमारा डॉलर होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, SLR हमारा पार्सिंग टेबल होगा, ये प्रोग्राम होता है, और हम लोग क्या करते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट बफर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इनपुट बफर एंड टॉप ऑफ द स्टैक की एंट्री हम लोग SLR पार्सिंग में चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग 3 एक्शन करते हैं, 4 एक्शन बेसिकली। या तो हमारा शिफ्ट होगा, आइदर इट इज़ ए शिफ्ट, आइदर इट इज़ ए रिडक्शन, आइदर इट इज़ ए एक्सेप्ट और एरर। सो यू आर सीइंग दैट देयर आर various cells which है blank, so it means that it gives an error action। so हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ID प्लस ID इंटू ID प्लस ID। हमें इस स्ट्रिंग को पार्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट बफर में वी विल पुट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉलोड बाय डॉलर, और हम लोग ये इनपुट बफर में डाल देंगे। टॉप ऑफ द स्टैक विल बी डॉलर। सो हम लोग क्या करते हैं, वी विल चेक द टॉप ऑफ द स्टैक एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इनपुट बफर। सो हियर वी आर सीइंग दैट टॉप ऑफ द स्टैक इज डॉलर एंड input buffer element of the input of the first element of the input buffer is ID। so top of the stack there is not dollar, it is starting state 0। so top of the stack is always the initially top of the stack will be the starting state, that is the 0, and so we will check the position of 0 with respect to the first element of the input। so we are checking these two corresponding element to the parsing table। so we will find that corresponding to 0 state towards ID position there is a shift 5 S5। so हम देख रहे हैं कि स्टेट 0 के करस्पॉन्डिंग ID के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है कि S5 है, दैट इज द शिफ्ट एंड द न्यू स्टेट इज 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा ID और नया स्टेट क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, और ID हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, ID प्लस ID इंटू ID। तो जब भी हम लोग शिफ्ट करते हैं, जो हमारा इनपुट बफर का पॉइंटर पोजीशन होता है वो एक क्या होता है, आगे खिसक आता है।
अब देखें हमारे पास क्या है कि द टॉप ऑफ द स्टैक इज 5 एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इनपुट बफर इज asterisk. So we will see what is the action towards state 5 with respect to asterisk. So we will find that corresponding to state 5 there is a R6 entry corresponding to asterisk. There is R6 in 6. इसका मतलब क्या है कि हमें रिड्यूस करना है विथ 6 नंबर प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा, ID विल बिकम F और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एस्ट्रिक बचा, ID प्लस ID इंटू ये डॉलर हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये किससे रिड्यूस होगा, F टू ID। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें नया स्टेट फाइंड करना होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक द एंट्री टूवर्ड्स जीरो स्टेट विद रिस्पेक्ट टू F। तो हम लोग देखेंगे कि जीरो के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। इसका मतलब जो नया स्टेट हो गया वो कौन सा स्टेट हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट तो हमें दिख ही रहा है। तो नाउ अगेन वी विल चेक द एंट्री ऑफ स्टेट 3 with respect to asterisk. तो corresponding to that we will find that there is an entry of R4. there is an entry of R4। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको रिड्यूस करना है 4th नंबर के ग्रामर से, और जो हमारा 4th नंबर का ग्रामर है T2F, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0T और ये क्या हो रहेगा ID प्लस ID एस्ट्रिक और ये क्या हो जाएगा रिड्यूस T2F। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीरो का T के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री है, जीरो का T2 के करस्पॉन्डिंग एंट्री है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, 2 के करस्पॉन्डिंग एस्ट्रिक में क्या एंट्री है। तो वी विल फाइंड दैट कि करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड स्टेट टूवर्ड्स एस्ट्रिक देयर इज S7। सो हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 के करस्पॉन्डिंग एस्ट्रिक में 2 के करस्पॉन्डिंग S7 है, तो नया स्टेट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड, तो इट विल बिकम ID प्लस ID डॉलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा शिफ्ट। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे 7 का ID के करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है। 7 का ID के करस्पॉन्डिंग एंट्री है S4। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0T, ये ऑलरेडी स्टैक में पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा ID और क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे 5, क्योंकि 7 का ID के करस्पॉन्डिंग क्या था, 7 का ID के करस्पॉन्डिंग S5 है। ठीक है, तो यहाँ पे S5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नई एंट्री 5 हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस ID डॉलर। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने क्या कर दिया शिफ्ट। अब हम लोग क्या, हमारा नया स्टेट क्या आ गया 5। ठीक है, अब वी विल चेक द एंट्री करस्पॉन्डिंग टू 5th स्टेट विद रिस्पेक्ट टू प्लस। सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 5 का प्लस पे क्या मिल रहा है R6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे विद 6 नंबर ग्रामर। तो ये क्या हो जाएगा 0T2 एस्ट्रिक 7 ID विल बी रिप्लेस्ड बाय F या रिड्यूस्ड बाय F। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का F है क्योंकि हमें नया स्टेट फाइंड करना होगा। 7 का F के करस्पॉन्डिंग 10 एंट्री है, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या बचा प्लस ID डॉलर। अब हम 10 का प्लस में एंट्री चेक करेंगे, 10 का प्लस में एंट्री चेक करेंगे, देयर इज ए R3, आपको दिख रहा होगा R3। तो इसका मतलब क्या है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो
किससे रिड्यूस करेंगे, R3 से। ठीक, तो R3 हमारा क्या है, R3 हमारा है T2 T एस्ट्रिक F। तो हमारा क्या हो जाएगा T एस्ट्रिक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा T एस्ट्रिक F। तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, T से। अब हमारा नया स्टेट फिर देखना होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 का T में देखेंगे, 0 का T में हमें दिख रहा है, 0 का T में 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे नया स्टेट क्या आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस ID डॉलर। अब 2 का प्लस में देखेंगे, 2 का प्लस में हमारा क्या है R2। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और प्रोडक्शन नंबर 2 से, R2 है तो प्रोडक्शन नंबर 2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है हमारा E2T। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा E2T आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 और ये E हो गया। ठीक, और 0 का E में देखेंगे तो हमारा क्या है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये प्लस ID डॉलर। अब 1 का प्लस में देखेंगे, 1 का प्लस में देखेंगे तो हम लोगों को S6 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी शिफ्टेड, तो ये 0, ये E1 ये शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस 6 था, S6 था, तो नया न्यू स्टेट विल बी 6, और यहाँ पे क्या बचेगा डॉलर, यहाँ पे शिफ्ट लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक द एंट्री ऑफ 6 टूवर्ड्स ID। 6 के करस्पॉन्डिंग ID में एंट्री है S5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, और ये प्लस, और ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ID, और नया स्टेट क्या आ जाएगा 5। ये डॉलर बचेगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक, अब हम लोग 5 का डॉलर के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। 5 का डॉलर के करस्पॉन्डिंग है, 5 का डॉलर के करस्पॉन्डिंग है जो एंट्री, वो है R6। सो स्टैक की एंट्री क्या हो जाएगी 6। 5 का डॉलर के करस्पॉन्डिंग, 5 का डॉलर के करस्पॉन्डिंग है R6, रिड्यूस करना है। ठीक है, R6 का मतलब क्या है F2 ID, तो ID रिड्यूस हो जाएगा F से। 6 का F में एंट्री देखेंगे, 6 का F में एंट्री है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ बचेगा डॉलर, ये हो गया हमारा रिड्यूस। अब 3 का डॉलर में देखेंगे, 3 का डॉलर में हमारा क्या है R4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4th नंबर के ग्रामर से रिडक्शन होगा। 4th नंबर का ग्रामर है T2F, तो ये क्या हो जाएगा 0 E1 प्लस 6, और T2F मतलब T हो जाएगा 6 का T के करस्पॉन्डिंग, 6 का T के करस्पॉन्डिंग एंट्री है 9, तो नया न्यू स्टेट विल बी 9, और ये क्या हो जाएगा डॉलर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा रिडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 के करस्पॉन्डिंग डॉलर में एंट्री चेक करेंगे। 9 के करस्पॉन्डिंग डॉलर में एंट्री, 9 के करस्पॉन्डिंग डॉलर में एंट्री क्या है R1। इसका मतलब 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो 1 जो ग्रामर है दैट इज E2 E प्लस T, E प्लस T, E प्लस एंड T, तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, E में। ठीक, और यहाँ पे डॉलर बचेगा। द न्यू स्टेट विल बी 0 to E की एंट्री देखेंगे, 0 to की एंट्री है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 का करस्पॉन्डिंग डॉलर में देखेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग डॉलर में देखेंगे तो ये क्या है एक्सेप्ट है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। सो हमने आपको बताया था एक्सेप्ट कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए। जैसे बॉटम ऑफ पार्सिंग में हम लोग रिड्यूस करते हैं तो क्या होना चाहिए, वी हैव ए स्ट्रिंग। ठीक, वी हैव ए स्ट्रिंग ID प्लस ID एंड दैट विल बी रिड्यूस टू स्टार्ट नॉन टर्मिनल। सो नाउ टॉप ऑफ द स्टैक इज E, दैट इज द स्टार्ट नॉन टर्मिनल, और हमारे पास क्या होना चाहिए, द इनपुट बफर मस्ट हैव डॉलर, मीन्स
ऑल द स्ट्रिंग मस्ट बी स्कैंड, सो द टोटल स्ट्रिंग इज स्कैंड, और इनपुट बफर में सिर्फ डॉलर बचा है, ठीक है, और टॉप ऑफ द स्टैक ई बचा है, और हमारा एक्शन क्या है, वन के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे डॉलर में एक्सेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को पार्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को पार्स करते हैं, ठीक। तो एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ। इन द स्टैक फर्स्टली इट विल बी जीरो स्टेट, हम लोग क्योंकि इन DFA जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। इनपुट बफर में वी विल पुट द स्ट्रिंग विच इज़ टू बी पास फॉलोड बाय डॉलर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक एंट्री चेक करते जाते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक इज जीरो, you must know that you must remember that always the top of the stack will be a state, ठीक है, क्योंकि हमें DFA में जाना है तो वहाँ पे स्टेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर स्टेट टॉप ऑफ द स्टैक स्टेट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है। तो टॉप ऑफ द स्टैक जीरो है, जीरो की ID में एंट्री चेक करेंगे तो हमें S5 मिला, इसका मतलब S मीन्स शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट करा दिया, नया स्टेट S5 है, 5 का मतलब नया स्टेट है तो 0 ID 5। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 का एस्टिक में देखेंगे, 5 का एस्टिक में देखा तो हमें क्या मिला, रिडक्शन, मतलब 6 नंबर के ग्रामर से 6 नंबर के प्रोडक्शन से रिडक्शन है, तो ID रिप्लेस हो गया, रिड्यूस हो गया F से, 0 का F में एंट्री देखेंगे, ये 3 है तो नया स्टेट 3 हो गया। और इस तरह से हम करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, अनटिल अनलेस ऑल द इनपुट ऑफ द इनपुट बफर मस्ट बी स्कैन। इसका मतलब क्या है, लास्ट में इनपुट बफर में सिर्फ डॉलर बचना चाहिए, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या होना चाहिए, अगर ई है और एक्शन हमारा क्या है, इस एक्सेप्ट है, तो हमारा इसका मतलब स्ट्रिंग पास हो गई और वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉटम ऑफ पार्सिंग में स्ट्रिंग को पार्स करते हैं। तो आप एक बार फिर से चाहें तो देखते चलें, और एक चीज़ याद ध्यान रखना कि बस हमें कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स अगर हमारा अच्छे से बना है तब तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को इजीली पार्स कर लेंगे, अदरवाइज क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बस हमें क्या देखना है, एक टेबल की सही से एंट्री आपको करनी पड़ेगी। एक आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आपको करना है, S2 A S2 B A2 एप्सिलॉन एंड B2 एप्सिलॉन, और क्वेश्चन है वेदर दिस ग्रामर इज SLR ग्रामर और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप पार्सिंग करते हैं, ठीक है, इफ़ द ग्रामर इज़ एम्बिग्यूअस और समथिंग एल्स, तो कई बार हमें मल्टीपल एंट्रीज आती है। तो इस ग्रामर में आप चेक करिएगा, शायद इसमें मल्टीपल एंट्रीज आती, तो इफ़ एनी SLR ग्रामर इन एनी SLR पार्सिंग, इफ़ द पार्सिंग टेबल कंटेन्स मल्टीपल एंट्री, ध्यान रहे मल्टीपल एंट्री, तो वो क्या होता है, SLR ग्रामर नहीं होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CLR पार्सिंग करते हैं, और हम लोग ये CLR पार्सिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा और हमारे जो गूगल क्लासरूम है उसमें जा करके आप लोग इसको सॉल्व करके हमें भेजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा, टच में रहिएगा, और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर जो मैं लूँगा वो CLR पार्सिंग में होगा। थैंक यू।